Yes. 2014 में तूने स्टार्ट किया था. Sometimes you feel so hopeless and you feel like, why me, God? Like, why me? What did I do wrong? Did not believe in law of attraction and everything. बड़ी intimate चीज़ है, I don't know why I'm even sharing this here. कि अब हम देंगे स्त्री 2 का रिव्यू. मतलब मैं तुझे explain नहीं कर सकती वो feeling. Keep on evolving and just I सकती think you हूँ should do this. See, just What's up, sister? Hi guys, I'm Pritika. hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? What's up, sister? I just told you, Sissy, it's my day 2 and it's paining. इतना weird सी साइकिल हो रही है मेरी after the medications and everything. कल बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि am I down or not? मैं doubt कर रही थी because कुछ feel नहीं हो रहा था, you know? वो feel होता है कि dripping Dripping. We're going down. We're going timber होता है ना? We're going timber. ऐसे half of the songs पता ही नहीं होते. बस हम अपनी feel के लिए वो बस गा लेते हैं. गा रहे होते हैं. But yeah, and What it's are day the 2. ऐसे common misspelled lyrics तुझे याद है जो? जैसे तूने लिरिक्स बोला है अभी लिरिक्स को. लिरिक्स बोला मैंने. Guys, दोबारा जाके 5 seconds rewind करना जरा मैंने lyrics बोला था. कॉमन मिसस्पेल्ड लिरिक्स नहीं. याद नहीं आ रहा? मैं तेरे को एक वो बोलती हूँ टंग ट्विस्टर. तो देखते 5 टाइम्स बोल पाती है नहीं. ठीक है. 5 times बोलना चलो 5. She sells seashells on the She seashore. sells seashells on the seashore. 5 times. तेज. She sells seashells on the seashore. She sells seashells on the seashore. Out. कोई नहीं. कोई नहीं. एक वो भी तो अभी आया ना 87654321 है? 765432 मैंने नहीं सुना. 1654. अच्छा. लगता है आपकी जनरेशन की उस पे एल्गोरिदम ने दिखाया है. गाइस एक तो मैं ये बताना चाहूंगी, मैं दीक्षा के फ्रेंड से और दीक्षा के साथ जब भी हैंग आउट करती हूँ मुझे 2-3 बार रियलाइजेशन करवा दी जाती है, अरे आप तो बड़े हो ना, अरे आपकी तो जनरेशन अलग है. मुझे आज तक कभी ऐसा फील नहीं होता, लेकिन और फन सिसी का में जो बेस्ट फ्रेंड है शिवेश वो भी सिसी से छोटा है. 3 years. नहीं मैं 4.5 years छोटी हूँ. तो मुझसे 1 साल बड़े हैं बस. तो बोलोगे मुझसे तमीज से बात करे, आज के बाद दीदी बोला करे मुझे. सिस्टर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती है फैक्ट दैट शी इज ओवर 30 एंड शी शुड हैव फ्रेंड्स जस्ट लाइक हर. जैसे बेस्ट फ्रेंड भी 28 है. No, but Neha is 33, Nikita is 32, Richa is 34. I think Bruce passport's above 35. So मेरा वो ऐसा नहीं है. Hello. And पता नहीं मेरे को guys मुझे ऐसा लगता है I still feel like a 20-year-old girl. ऐसे I You're would aging like a wine. aging like a fine wine. I'm really blessed कि हम दोनों जैसे हमारी puberty एक बार हमें हिट करी है उसके बाद we're growing and glowing. I feel Yeah. very proud of the fact that how we are growing each Yeah. day. I'm very excited हम 50s में कैसे दिखेंगे to see each other. Yeah. Can I plug in my YouTube series Glowing and Growing with Also, guys, sister just completed 10 years of That Boho Girl yesterday, which was on 22nd August. Yes. 2014 में तूने स्टार्ट किया था. Yeah. फर्स्ट But ब्लॉग they- डाला था. उससे पहले तो पोस्ट डालती थी. उससे पहले मैं पोस्ट डालती थी. मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताती हूँ. एज अ सिस्टर हाउ डू यू फील लाइक प्राउड एंड ये सब चीजें मुझे पता है, लाइक तू मुझे वैसे भी बोलती है, बट इन जनरल लाइक किसी की जर्नी ऐसे, क्योंकि सिबलिंग का पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता होगा. Yeah, personally, I feel very normal because I'm living with you, right? So it's very normal for me. I've seen your downs, ups, and highs, major highs, also your achievements, your everything. Now I feel you have achieved so much in life. Now, once you achieve another thing, it's very normal for me now because I've seen Yeah. you achieving so many things in your life. होता है ना एक first achievement की जो एक खुशी होती है, excitement होती है. Oh, this is the Yeah. first time you got the Cosmopolitan Award. I was so Yeah. happy and वो एक अलग ही feel थी. And धीरे धीरे होता है ना आपको चीजें मिलती रहती है. नेक्स्ट ईयर भी जब कृतिका नॉमिनेट मैंने कहा तुझे तो मिलना ही है, क्या टेंशन ले रही है, और फिर उसको 2 मिले, अरे तुझे तो मिलना ही है. तो we all got used to it and I feel it's very normal for us. But sometimes when I look back and I see you have done so many things in your life. मतलब you say that you're very not headstrong and you're dependent on people, on your loved ones. तू बोलती रहती है podcast पे, तू मेरे सामने भी तो बोलती है that you're weak, you feel that you're weak, but मैंने कभी तेरे को उस चीज़ से perceive ही नहीं करा because मैंने तेरे को second person की उससे भी देखा है. मतलब तेरे views भी सुने और जो मेरे को feel होता है मैंने वो भी सुना है. तो I know that even though you share your dark secrets with me, but still I know कि how I perceive you, how I see you doing life. And I know that you're not weak. मैं तेरे को हमेशा बोलती हूँ तू नहीं है weak. तो एंड आई बिल्कुल भी थिंक नहीं पता है. है ये रियलाइजेशन मुझे रिसेंटली हुई है, लाइक आई थिंक लास्ट 1 year, कि मे बी हम अपने आप को बहुत क्रिटिकली जज भी करते हैं. जैसे तू बोलती है ना अभी तूने लास्ट
2-3 पॉडकास्ट में भी बोला था कि ओ हाउ डू यू टॉक टू पीपल या जो, मेरे को कभी भी नहीं लगा, आई हैव ऑलवेज अज्यूम्ड यू एज एन एक्सट्रोवर्ट. अब तू शेयर करती है कि नो यू डोंट रेजोनेट विद दैट टर्म, तो शायद इन बिटवीन है, बट मेरे को कभी भी नहीं लगा. तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा अपने खुद के इतने वर्स्ट क्रिटिक होते हैं. एंड व्हेन आई रीड कमेंट्स और मे बी रिव्यूज, जब मैं किसी से मिलती हूँ, व्हेन आई सी यू गाइज, जब ऐसे हम कभी रैंडम खान मार्केट या कहीं सीपी पे मिलते हैं, वो इमोशन पता लगता है कि कोई दिल से बोल रहा है. जब कोई मुझे बोलता है ना यू बीन सो स्ट्रॉन्ग, तो मुझे ऐसा लगता है या आई एम सो स्ट्रॉन्ग, इट्स जस्ट दैट आई डोंट गिव माई सेल्फ इनफ क्रेडिट. हम अपने आप को वैसे भी इतना डाउन प्ले करते रहते हैं, है ना, अपनी चीज़ों को. तो मे बी बट येस आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम वेरी प्राउड एंड We are also proud of you. But मैं वही तुझे बोल रही हूँ, sometimes you share some things with me, right? Oh, you're not feeling good. Oh, कैसे मैं करूँगी? Back of the mind मुझे पता तू कर लेगी, इसलिए मैं इतना भाव भी नहीं देती उस चीज़ का. यार ये बोलती है, अभी बोलेगी, अगले दिन फिर उठकर शूट करने चल जाएगी. Nothing. वो होता है ना एक टाइम में बस तुम निकालना चाहते हो, किसी वेंट आउट करना चाहते हो, तो इट्स वन ऑफ दोज डेज. कृतिका के कभी कभी आते हैं, उस टाइम पर आई डोंट फील ओ क्या होगा इसकी लाइफ में. कभी ऐसी फीलिंग आई ही नहीं कि मतलब ओ ऐसे मतलब पिटी वाली बेचारी क्या कैसे करेगी, वो कभी आई नहीं. बिकॉज आई नो यू एज अ पर्सन, आई नो हाउ यू हैंडल थिंग्स. लाइक तेरे को लगता है दैट यू थिंक दैट यू कांट हैंडल थिंग्स, बट यू कैन. And you do it unintentionally, I feel. And you don't even realize it that you handled that situation very gracefully. And I think सबसे ज़्यादा comments मैंने कल उससे related पढ़े हैं. कभी कभी when you're maybe surviving or struggling या जो भी, तो आप जैसे there were a lot of things जो मुझे देखनी थी उस टाइम पे, my personal life, my work, and बहुत सारी चीज़ें थी. एक चीज़ मैंने build कर रखी थी इतने टाइम से, वो भी सफ़र कर सकती थी, एंड मेरी मेंटल हेल्थ तो सफ़र कर ही रही थी. बट उसके बीच में आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी, मतलब एक नया टेंजेंट पे. एंड आई एम सो प्राउड दैट मैंने किसी गलत चीज़ों में गिवन नहीं करा. जब भी होता है ऐसे easiest option, I Into don't drugs wanna and name, everything, yeah. trigger anyone or name anything, but still into these things because वो easy relief मिलता है. And just holding yourself together and not be hateful or negative towards life, towards people. Yeah, that's one point which I appreciate about you, that even though after whatever happened in your life, you still are very hopeful. Like you have faith in so many things. अगर तेरी जगह कोई भी होता, वो कब का वो faith, hope उसके body से ही निकल चुकी होती. तो you're full of faith and hope and love. मुझे ऐसा लगता है one thing that has really worked also for me, if you're going through something and maybe you're thinking right now कि एक के बाद एक बुरी चीज़ें हो ही जा रही हैं, and sometimes you feel so hopeless and you feel like why me God, like why me, what did I do wrong? Just hold on, and I'm so sure you'll come out of it. You'll come out of it stronger. बड़ी intimate चीज़ है, I don't know why I'm even sharing this here. Yesterday मैं मंदिर है ना, वहाँ बाबा जी की फोटो के सामने बैठी हुई थी. आई वॉज सो ग्रेटफुल एंड आई वॉज थैंकफुल फॉर ऑल द बैड मोमेंट्स ऑल्सो, जो मुझे कभी नहीं लगा था लाइफ में कि मैं कभी भी उस चीज़ के लिए थैंकफुल हो पाऊंगी. इतना बुरा हुआ तो मतलब उसके लिए कभी कोई कैसे थैंकफुल हो सकता है. दैट्स द वर्स्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ. बट आई वॉज फिल्ड विद हैप्पी टीयर्स एंड ग्रेटफुलनेस इन माई हार्ट कि जो भी हुआ, लाइक आई हैव सच गुड थिंग्स इन माई लाइफ, एंड मैं यहाँ तक पहुंची तभी हूँ बिकॉज ये सब हुआ है. वरना मैं वही कृतिका रहती 20-year-old नाइव एंड इन माई ओन वर्ल्ड एंड आई डोंट नो एनीथिंग, यू हेल्प मी, या तू दीक्षा जो कर रही है मैं वो कर रही हूँ, या कोई और जो कर रहा है मैं वो कर रही हूँ. I remember a day when I asked Kritika to book a cab, and she said, "How do you book a cab?" And I was like, what the fuck, you don't know how to book a cab? Are you a kid? And she was like, no, I don't know how to book a cab, मुझे समझा देना. And I literally taught her how to book a cab. And there was this day I was asking her to do a payment UPI and something. She was like, how do you use Paytm? मैं इतना ज्यादा, मैंने कहा यार तू पागल है. Like I'll tell you one thing, and even though the I've listeners always been very dependent on my partners. I think so. That's one trait that I need to work on also. Yes, you need to work on it. If someone, if someone who's listening to this podcast and someone who thinks that, oh, I am also naive, I don't know about some things, I'm pretty sure Paytm ऊपर तो आपको आता होगा. guys, सब मेरे जितने गए कुछ भी नहीं होंगे. नहीं, but मेरा भी तेरे को पता, मेरा भी ये thought बहुत ऐसा था. Okay, ठीक है, I don't want to watch news, I don't want to see negative things. So भी चल रहा है life में, I don't want to give a fuck, I don't want to live in my own bubble and everything. But you should know about normal general knowledge. You should have an idea about things which are going on and kya chal raha hai, what's new in the market. You should have an idea about it, and you should never ever be dependent on your partner fully, be it your boyfriend. I'm talking about your husband. And if you're 80 years old also, you should never be dependent, like fully. Even but that's such a weird thing कि although I was financially independent, जो कि सबसे important चीज़ है, like if anyone's listening, any girl is watching or a guy, being financially independent will take you places. आपको इतनी freedom देगा अपने life में वो decisions लेने के लिए, because a lot of times a lot of girls suffer
in bad situations because उनको लगता है कि I don't have anyone, I don't have a backup, I don't have a support system. Sorry, तो क्या बोल रही? True, I have had cases like in front of me only, like girls who are struggling in their marriages and in their relationships, and the only reason they are not letting go of that person, like obviously there's love, there's hope, but the main reason is financial freedom. Like it's okay to be a housewife. Being a housewife is very difficult. No, like you're we see our handling mother. a lot of things. Exactly. इतना credit भी नहीं मिलता उस चीज के लिए. मतलब if you look at Yeah. your mom, मतलब सब कितना कुछ कर रहे होते हैं, Exactly. हमें पता ही नहीं लगता मतलब कि वो चल रहा होता है ना, प्रोसेस चल रहा एक वीक के लिए भी मम्मा घर से चली जाना तो उथल ऊपर नीचे पुथल हो हो जाता जाता है पूरा घर, एंड वी डोंट नो एनीथिंग लाइक कहाँ क्या क्या चल रहा है. मतलब देयर सो मेनी पीपल यू आर हैंडलिंग, देयर सो मेनी थिंग्स यू आर हैंडलिंग ऑल टुगेदर. आज सारे क्लोथ्स लॉन्ड्री होने, आज ये होना, आज ये खाना बनना, सबने खाना. तो सल्यूट टू ऑल द पीपल हु आर हाउसवाइफ्स एंड हु लाइक बीइंग अ हाउसवाइफ. बट आई एम सेइंग इफ यू आर अ हाउसवाइफ आल्सो जस्ट इन्वेस्ट इन सम थिंग्स. लाइक आपके पास एक सोर्स है इनकम का, योर हस्बैंड, योर बॉयफ्रेंड, इट्स योर राइट टू take out of their pockets and everything. So I'm saying Sissy, क्या advice नहीं तो it's okay ना, everyone knows, but how our mother functions. Yeah. ठीक है, our mother is also a housewife, so वो जो भी पापा से उनको मिलता है, कुछ भी मिलता है, she invest in so many things, and I still believe चाहे हमसे ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि गोल्ड एंड डिफरेंट कमेटीज एंड एवरीथिंग, एंड तब भी उनको कुछ चाहिए होता है, इवन तो पापा सेज नो समटाइम्स, वो लेकर आती हैं. नहीं, बट आई थिंक मम्मा ने जो ये करा था दैट वाज सो हेल्पफुल बिकॉज वी वर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच. आई थिंक मतलब लास्ट 5-10 ईयर्स में 2-3 सिनेरियोज हुए हैं वेर इन वी वर गोइंग थ्रू समथिंग. सो सबने पूल इन करा था एंड मुझे इतना वो हैप्पीनेस फील हुई थी कि मम्मा ने ये सब सेव कर रखा था सो दैट वो हो सके. नो मैटर हाउ स्मॉल बिग, मेक श्योर दैट यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी बिकॉज हमें पता भी नहीं लगता लाइफ इज गोइंग ऑन. मुझे नहीं पता 10 साल कहाँ गए लाइफ के. अगर मैंने 10 साल पहले इन्वेस्ट करा होता तो वो अभी डबल हो रखा होता अगर मैंने 10 साल पहले इन्वेस्ट करा होता. बट वन थिंग इफ आई कैन गिव यू अ सजेशन, अगर आप अभी स्ट्रगल करो और आपको समझ नहीं आ रहा, आप देखते हो ऑनलाइन, आपको लगता है यार मुझे अपना पाथ नहीं समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ. देयर आर सो मेनी थिंग्स. एक तो स्किल शेयर पे यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ स्किल्स गाइज, एंड आई थिंक इफ यू आर इन योर 20s it's the best time to explore and try out as many things as you want. Different चीज़ों में अगर आप ट्राई करते हो देन यू रियलाइज कि अच्छा हाँ मुझे मे बी आई लाइक एडिटिंग, मे बी आई लाइक कुकिंग, और मे बी आई लाइक इवेंट हैंडलिंग. आई थिंक फोटोग्राफी एंड एडिटिंग इज ऑल्सो वन स्किल. जैसे मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात कर सकती हूँ इस साइड ऑफ वो, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एन एडिटर, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर, है ना. तो दीज आर द स्किल्स दैट यू कैन डेवलप घर पे ही सीख के भी, और खुद के कैमरा से खुद के फोन में भी प्रैक्टिस कर करके, है ना. वर्चुअल असिस्टेंट, बेसिक जॉब रोल्स जो मैं हमारी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ. वी आर ऑल्सो हायरिंग राइट नाउ. Yeah, we are also hiring. We are expanding our team. Yes. So if you are related to our work, so just let us know. Drop an email. We'll add our WhatsApp sister email in the description box below. So just drop us an email. We'll Yes. definitely go through your CV and everything. And funny thing, Tanya, she's handling social media for WhatsApp Sister. So she approached Archita when she was editing. कि she was in a metro and she was coming back from her job and she was not happy. And उसने podcast सुना और podcast में हमने बोला था कि we are looking for someone who can handle our social media account and yes, everything. So and she reached out to Archita and she started working with us. It's been 2-3 years. it's been 3 years now. And I think वो फर्स्ट स्टेप लेना इज सो इम्पोर्टेंट. समटाइम्स यू थिंक अरे पता नहीं कौन देखेगा क्या करेगा. लाइक नॉट जस्ट अस, रीच आउट टू 100 पीपल, उसमें से एक जना कोई तो रिवर्ट करेगा ना. That's true. Yeah. That's true. So if you have any interest in anything, just my personal advice would be just do what interests you and it will take you to places. And obviously financial freedom is very 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 important. And मैं कभी कभार ना कृतिका को ये बात बहुत बारी ऐसे conversation में भी बोलती थी that there are so many people who wants to live your life still. Because you are so financially independent, you have your career sorted and you have so many things. Because end goal ना, everyone's end goal, even though you are in a relationship, your end goal किसी का भी आजकल everyone is, पहले अगर हम देखा जाए तो man of the house only, you know, bread earner होता था. अब everyone is so interested in working. Financial freedom सबको इतनी प्यारी है कि उनका end goal, even though they are in a good relationship, healthy relationship, their end goal is to earn money, to be settled. It's really nice. Just start looking out for things. There are so many opportunities now, like इंस्टाग्राम एंड ऑनलाइन मार्केट जब से आई है ना, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ चुकी हैं, इतनी डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स होने लग गई हैं. इतने जॉब प्रोफाइल्स अभी मतलब मैं भी पर्सनली जब देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ वी लुकिंग फॉर अ पर्सन, राइट, जो हमने अभी शेयर करा था. सो निकिता हु इज आवर मैनेजर, उसने अभी इंटरव्यू लिया था एंड दिस गर्ल नोज एडिटिंग ऑल्सो, शी इज मैनेजिंग ऑल्सो, शी इज इनटू सोर्सिंग ऑल्सो, शी इज डन अ लॉट ऑफ गुड वर्क. सो जितनी आप चीज़ें अपनी स्किल्स में ऐड करते रहोगे ना, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. एंड मतलब अ लॉट ऑफ पीपल हु जॉइंड आवर टीम ऑल्सो बिफोर, एंड वो स्टार्टिंग से बिल्कुल ऐसे नहीं थे कि दे आर एक्सपर्ट्स, बिकॉज मतलब पर्सनली वी डोंट
एक्सपेक्ट कि कोई एक्सपर्ट आए. इट्स ओके, लाइक यू बिल्ड टुगेदर. आई थिंक जब आप टीम साथ में होती है, एवरीवन इज लर्निंग एंड एवरीवन इज ग्रोइंग, बट It is you should be basic skills yeah, होनी चाहिए. basic skills, and you should be ready to learn. I think that's one thing that I look forward to. And that's one brief जो निकिता और मेरा भी होता है हमेशा. I don't mind कम skills. कोई ऐसा बंदा होना चाहिए who's willing to learn and is open minded. I think that's one thing that I look forward to. क्योंकि आप उनके साथ बिल्ड कर सकते हो. If someone so stuck and stubborn, आपको लगता है यार नहीं वो नहीं हो पाएगा, because work is something so intimate for me, because मेरे को ऐसा लगता है मैं जिनके आसपास भी मैं काम करूँ मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, एंड मुझे ऐसा कुछ नेगेटिविटी मेरे से काम नहीं हो पाता. I shut down after that. Exactly, because we are not used to working in big office spaces and Oh my god. I'm gonna applaud everyone who is working in corporate world. मुझे ऐसा लगता है it's so tough. जितनी मैंने अपने friends की stories सुनी है और लोग जो टीम में भी कभी आते हैं अपनी struggles बताते हैं कि now we've switched into this field, digital marketing, and this is so different and XYZ. But corporate world is so tough, and especially तब सोच जब you can't leave the job because आप अपनी family को भी handle कर रहे हो, and your mental health is also suffering because वहाँ politics और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. I'm sure बहुत अच्छी amazing true, जगह भी होती होंगी, जगह भी होती हैं. but बहुत मैंने I think 60% मैंने बैड रिव्यूज सुने अपने फ्रेंड्स के थ्रू, बट आई थिंक सबकी अपनी डिफरेंट स्ट्रगल्स होती हैं. बट या I was listening to this podcast of a person, and उसमें ना वो अपना कोई एग्जाम्पल शेयर कर रहे थे, and that lady was like कि when I did not believe in law of attraction and everything, so she was like कि मैं गई, मैंने बोला कि वो ऑफिस में थी, एंड उसका जो एक बॉस था पहले, इज रियली नाइस मेंटर जो था, एंड शी वाज वेरी हैप्पी, एंड आफ्टर अ मंथ ही लेफ्ट, एंड उसका जो मेंटर था वो चेंज हो गया, एंड शी केम टू हर हस्बैंड एंड शी वाज लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब एनीमोर, मैं दूसरी जॉब लूंगी क्योंकि मेरे यहाँ पे बॉस अच्छा नहीं है. एंड हर हस्बैंड वाज लाइक कि तू अभी उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, डोंट लीव द जॉब बिकॉज यू आर नॉट ऑन द राइट फ्रीक्वेंसी, एंड इफ यू लीव द जॉब तेरे को आगे जाके सेम प्रॉब्लम होगी. डोंट लीव द जॉब, जस्ट ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड जस्ट ट्राई टू टेक थिंग्स डिफरेंट वे में. तो शी वाज लाइक नो आई वांट टू लीव द जॉब. शी स्विच्ड टू जॉब, एंड उसका जो बॉस था फर्स्ट 2 months बहुत अच्छा, शी वॉज वेरी हैप्पी, एंड आफ्टर 2 months वो उस बॉस की भी जॉब चेंज हो गई, और उसका जो दूसरा बॉस आया वो इतना ज़्यादा रूड, इतना ज़्यादा अजीब, एंड शी वॉज लाइक व्हाट डू आई डू नाउ. तो वो बोलती अब मेरे को ये भी चेंज करना है. वाज लाइक डोंट डू इट, जस्ट ट्राई टू बी in the situation, just try to feel positive, अपना उस frequency पे to accept positive nature, positive energy, and then you will see the change. And she's like अच्छा ठीक है, let me do this for 30 days and I'll see. And उस boss ने अपनी job change कर दी, new boss आया जो और अच्छा था, जो और better था उससे, and she was very happy with everything. So ये भी होता है. Yeah, obviously I think तूने मुझे एक स्टोरी बताई थी. You were listening to this podcast where law of attraction के बारे में ही वो बात कर रहे थे, जो टीच कर रही थी law of attraction के बारे में. वो उसको बोल रही थी कि तेरी लाइफ में सेम प्रॉब्लम, सेम चीज़ें इसलिए होती रहती हैं बिकॉज मे बी यू आर अट्रैक्टिंग इट. वी डोंट रियलाइज, कभी ऐसे किसी को लगता है यार इतनी बुरी सिचुएशन मैं कैसे अट्रैक्ट कर सकती हूँ. इवन इफ यू आर फियरफुल कि ये ना हो जाए, ये ना नहीं सुनता है यूनिवर्स, एंड आई थिंक ये सब सुन चुके हैं, सारी वीडियो सीक्रेट की सब देख चुके हैं. सो क्या हुआ, टचवुड ऐसी मैं भी कर लेती हूँ. सो या इन जनरल हाउ आर यू फीलिंग, कंप्लीटली स्विचिंग द टॉपिक. me या my emotions are all over the place. एक मिनट में ठीक है नॉर्मल होती है, दूसरे मिनट में कोई इतना गंदा, बिकॉज ये साइड इफेक्ट्स होते हैं मेडिकेशंस. मेरे को अब फील हो रहा है कि मेरे को वो फील हो रहे हैं साइड इफेक्ट्स, बिकॉज इतने टाइम से क्रैंकी भी तू नहीं मुझसे पूछी थी 3-4 days पहले तेरी डेट आने वाली है क्या, जो तू इतनी क्रैंकी हो रही है. सो अभी मेरे अंदर माय इमोशंस आर अभी ऐसे ऊपर नीचे. अभी पेन भी हो रहा है मेरे को. तू बताना चाहिए तू कौन सी मेडिकेशंस ले रही है अभी, बिकॉज आई डोंट थिंक सो किसी को जिस समझ आया होगा क्या बात कर रहे हैं हम. हाँ, हमने बिकॉज ऑफ माई हॉर्मोन्स एंड एवरीथिंग अच्छे से मेरी साइकिल चले है, तो मम्मा ने मेरे को आयुर्वेदिक मेडिसिन में डाला था. जब तक मैं उस मेडिकेशन पे हूँ आई वोंट गेट डाउन, एंड इट्स काइंड ऑफ अ सब्सटीट्यूट ऑफ अ बर्थ कंट्रोल. ओह हाँ, मेरे को गाइनैक ने मेरे को रेकमेंड करी थी, तो वो बिल्कुल एलोपैथिक मेडिसिन थी, एंड मम्मा इज अगेंस्ट एलोपैथिक मेडिसिन, एंड शी वाज लाइक मैं पूरी जिंदगी तुम्हें एलोपैथिक नहीं लेने दूंगी. तो उसका वो सब्सटीट्यूट लेकर आई थी आयुर्वेदिक मेडिसिन, विच इज रियली नाइस, जो कि एलोपैथिक में मेरे को इतने सारे सिम्टम्स आने चाहिए थे. वंस यू गेट ऑन बर्थ कंट्रोल्स, मेरी फ्रेंड भी लेती है बिकॉज अपनी साइकिल को ठीक करने के लिए, उसका भी ऊपर नीचे रहता है साइकिल का, उसको भी रेकमेंड करा था. तो उसने मुझे बताया था कि वंस यू स्टार्ट विद दीज मेडिसिन यू कैन स्टॉप इट टिल 40 days, और तेरे को इतने ज्यादा तो इमोशंस अपने फील करेगी. Sometimes you will feel so angry and low BP, everything will be so bad, and मतलब थोड़े टाइम बाद तो इसको वो करेगी, and I was like I don't want to go उस लाइन में, सो आई स्टॉप्ड आफ्टर 1 day. एंड उसके बाद मम्मा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइक इट्स काइंड ऑफ द सेम, बट वो इमोशंस वैसा इतना एंशियसनेस वगैरह नहीं हुआ मेरे को जितना अगर मैं एलोपैथिक लेती तब होता. बट हाँ ठीक है, इट्स रियली नाइस. आई स्टॉप्ड इट आफ्टर 30 days, एंड विद इन अ वीक आई गॉट माई पीरियड्स.
again. So I'll try it for 1 month कि मेरा next month भी इसी डेट पे आता है, फिर ऊपर नीचे होता है, because मैंने पहले भी शेयर करा था कि after 15 days मैं डाउन हो रही थी, तो वो साइकिल बहुत ज़्यादा मेरी खराब हो गई थी, तो just to वापस से revive my actual cycle and dates, so that's why I was on medication, Ayurvedic medication, and if it works out I'll definitely let you guys know on this podcast only, because personally I felt वेरी नाइस. कुछ खा रही हूँ मुझे ऐसे पता ही नहीं लगा आई एम ऑन मेडिकेशन, मुझे फील ही नहीं हुआ ऐसे. एंड उसके कुछ वो भी नहीं थे कि अच्छा यू कैन डू दिस, ये नहीं खा सकते वो नहीं खा सकते, जैसे एलोपैथिक में होती है यू कैन ड्रिंक. ड्यूरेशन क्या है उसका? 30 days का था मेरा. 30 days के बाद टुक मी 1 week एंड 1 week में आई गॉट डाउन. अब आई विल सी हाउ माई साइकिल वर्क्स नाउ, तो उसके बाद आई गेट टू नो कि इफ इट्स वर्किंग और नॉट. Yes, we're gonna let you know, guys. Yes. How are you feeling, sister? How Good. are you Right now I'm very 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 happy. Touch wood. Touch Very wood, nice. grateful. I think मैं कल अपनी फ्रेंड के साथ भी गई हुई थी, तो उसने बोला कि अरे तू यहीं आ जा जिम, वील सेलिब्रेट कल 10 years वाला. कॉफी पीने गए थे बस, एंड वी वर जस्ट ऐसे सिटिंग एंड रैंडमली टॉकिंग. तो मुझे बोलती कि आई होप यू नो हाउ प्राउड आई एम एंड आई होप तू अपने आप पे प्राउड है. एंड जब कोई फ्रेंड बोल, पता नहीं मुझे ऐसे मेरे को कभी मेरा Girl किसी फ्रेंड ने नहीं बोला आज तक. एक दो फ्रेंड्स मेरी हैं ऐसी जो इमोशनल हैं, जो एक्सप्रेसिव भी हैं. मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रही हूँ, बट पता है मेरे को दूसरी बार मेरी एक फ्रेंड ने अभी इन अ वीक बोला है कि पता नहीं मैं तेरे साथ इतनी एक्सप्रेसिव हूँ और लोगों के साथ मैं ऐसे करती हूँ, आना हग आई मिस यू, चल छोड़ मैं मजाक कर रही क्लिंगी हूँ ना. शट अप शट अप. You get things out. मतलब तू लेकर आती है, तू बहुत ऐसे उस पे बता ना क्या चल रहा है. क्लिंगी. मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ हूँ तो मुझे अब बताओ तुम्हारी लाइफ अच्छी है बुरी है क्या हो रहा है, ऐसे नहीं कि और वही वेदर ठीक है सब ठीक है चलो बाय. और फिर मैं उसके बाद सुनती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ और उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन भी होता है. भी होता है, तेरे पास क्वेश्चन भी होता है. फिर उसको पहले कृतिका के पास क्वेश्चन होंगे कि मैं सिचुएशन को अच्छे से जान जाती हूँ. फिर उसके बाद इसके अंदर जब तक वो क्वेश्चन बता रहा होगा तब तक आंसर्स ऑलरेडी इसकी थ्योरीज चल चुकी होंगी. मे बी तेरी चाइल्ड ट्रॉमा होगा, मे बी तेरा ये ट्रॉमा होगा, मे बी तेरा गर्लफ्रेंड ट्रॉमा होगा, मे बी बॉन्डिंग ऐसी हो रही होगी, मे बी डैडी इशू, सब कुछ ऑलरेडी रेडी होगा प्लेटर में देने के लिए कि मैं ऑप्शंस देती हूँ उसमें से आप खुद भी चूज कर सकते हो. बट ये मेरे को आई रिमेम्बर, सॉरी मैं कट कर रही थी, जब हम फुकेट में थे सारे के सारे लड़के कैसे लाइन में बैठे हुए थे एक एक करके सब प्रॉब्लम बता रहे. दीदी ये रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाह रही थी, इसकी पहली वाली ने इसको छोड़ दिया था, इसको ट्रस्ट ही नहीं है, इसको लगता है ब्रेकअप हो जाएगा. फिर पहले सिस्टर इसको बता रही है तू पता है इसलिए नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं. क्या हो रहा है. मुझे वो सीन याद आ गया. रात को बैठे थे पूल के पास था जब, ओह गॉड हाँ वो बहुत फनी था. ऐसे दादी माँ वाली फीलिंग आती है मुझे कभी कभी. बट मुझे अभी एक सिचुएशन जो आई है याद, उससे पहले बाद में बताती हूँ. फ्रेंड वाला जो हम बात कर रहे थे, दीक्षा ने मुझे बोला आजा आजा, और 21st को इन्होंने मेरे को सरप्राइज करे ऐसे क्यूट सा, वो आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, और मुझे ना बड़ा ही वियर्ड लगता है. स्पार्कलर्स जब आ रहे थे तो मैंने बोला मैं हमेशा देखती हूँ ओ किसका बर्थडे हो, मैं कहा मेरे लिए तो नहीं आ रहे, शिट 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 मेरे लिए नहीं आ रहे. फिर मैंने बोला आ गए. मतलब आई डू फील नाइस, बट मुझे लगता है सब उधर उधर देखो. मैं अकेले केक पर वो ना अच्छा होता है सबके सब आगे तुम्हें कवर कर लेते हैं, पीछे किसी को दिख ही ना कि वो क्या रहा है. हाँ, तो वो हुआ था. तो उसके बाद मैं दीक्षा के एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी एंड मैंने बोला हाउ आर यू फीलिंग. वो ना बिल्कुल ब्लंट और ऐसे बोल देती है मुंह पे जो भी वो फील कर रही होती है. तो बोलती है दीदी को ना एक चिट दे दो बस. कहती वो गेम नहीं खेलते थे बचपन में, जो वर्ड आया उस पर 5 मिनट बोलना है. कहती ये बोल भी लेंगी और आपके मन से निकलवा भी लेंगी, और इनके पास उसके बाद क्वेश्चन भी होता है. कहती दीदी मैं बहुत सही हूँ, ये वो अपना पूरा एक्सप्लेन कर रही है, ये कर रही है वो कर रही है. मतलब वो फिर बाद में मेरा मजाक उड़ा रही थी कि इनको बड़ा इंटरेस्ट होता है. बट आई ऑल्सो रियलाइज दिस, आई थिंक लास्ट 1-2 महीने में मुझे सुन के पता लग रहा है. कम पूछूंगी अब मैं. नहीं बट उसने अच्छे में बोला था कि मैं तेरे साथ एक्सप्रेसिव हूँ. हाँ, तो अच्छे वे में दोनों ने अच्छे वे में बोला था. तो बोल रही थी कि आई होप यू नो कि वी आर सो प्राउड एंड बाकी सारी चीजें. एंड रैंडमली वी वर डिस्कसिंग हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स एंड मतलब गर्लफ्रेंड. मुझे पता है पिछले 1-2 पॉडकास्ट में हमने ये भी बात करी थी कि बहुत सारी चीजें होती है, कॉम्पिटिशन एंड ये वो, वी ब्रॉट अप लाइक दैट. बट आई थिंक जो एक गर्लफ्रेंड जो आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है ना, इफ इट्स हेल्दी फ्रेंडशिप, दैट्स समथिंग दैट यू डोंट गेट यूजुअली फ्रॉम गाइज. मतलब गाइज मुझे लगता है एक सर्टन ह्यूमर और इजी कैसे बना सकते हैं सिचुएशंस को, और प्रैक्टिकलिटी उनको नंबर्स में और स्टैट्स में समझ आता है. यूजुअली लड़कियों के साथ आप 5 मिनट बस बोलते रहो, इफ यू कैन टॉक टू योर गर्ल्स इमोशंस के बारे में, दे लिसन टू यू एंड दे नो ये सिर्फ 5 मिनट रैंट कर रही है, इसके बाद शील भी ओके. इतने फेजेस देख चुके हैं ना हम सारी फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ में, लाइक द गुड एंड द बैड, ऑल द पीपल हु वर इन्वॉल्वड एंड हु वर देयर इन आवर लाइफ. कैसे एक्सप्लेन करूं, मतलब यू आर ग्रोइंग विद समवन ना, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है. द अदर डे आई वाज विद माय फ्रेंड, हम डिनर करने गए थे एंड बात कर रहे थे जब, तो मैंने बोला यार आई विल बी सो हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन योर स्ट्रगल्स द डे यू गेट मैरिड. आई डोंट नो
मतलब मेरे हैप्पी टीयर्स ही नहीं रुकने वाले, क्योंकि अभी किसी को देखा, किसी का प्रोसेस देखा हो ना, ऐसा लगता है दिस पर्सन डिजर्व्स लव. मुझे अपने फ्रेंड्स को देख के ऐसा लगता है कि यार इनको मिलना चाहिए प्यार, लाइक ये डिजर्व करते हैं. सो या That's sweet, Sissy. You also deserve love. You Yes. also yes will get someone in your life, and you'll stop being my third wheel. I'll still be your third wheel. मैं fourth wheel को भी बोलूंगी. फिर हम 4 व्हील साथ में कार बनकर चलेंगे. बट यार मैं तुझे बोलना चाहूंगी कि यू एक्सपीरियंस गर्ल फ्रेंडशिप्स इन अ डिफरेंट वे एंड आई एक्सपीरियंस गर्ल फ्रेंडशिप्स इन अ डिफरेंट वे. समटाइम्स मेरा वो इमोशनल वाला जब तब तक मतलब कभी कभी आता है, बट तेरा डिफरेंट फ्रेंडशिप्स मैंने देखी. आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड आई दैट थिंक काइंड तू ऑफ. ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में है. जैसे जो दूसरी फ्रेंड जो मुझे बोल रही थी ना, हाँ. तो उसने मुझे एक चीज बोली थी विच आई थिंक तू भी है ऐसी. उसने बोला कृतिका, मैंने बोला व्हाई डिडंट यू टेल मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी. आप यार ऐसे मत करा कर ये वो. शी वाज गोइंग थ्रू समथिंग एंड शी इज लाइक यार मेरे हमेशा लाइक गाय फ्रेंड्स रहे हैं एंड मुझे ना आदत ही नहीं है कभी एक्सप्रेस करने की. अगर तेरी जैसी फ्रेंड मेरी बचपन से हुई होती ना तो शायद मुझे आदत पड़ जाती वो एक्सप्रेस करने के लिए. लाइक वी गॉट टू नो ईच अदर कॉलेज के बाद ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई थिंक उसके बाद. तो फ्रेंड्स हम लेटर ऑन बने थे. तो मुझे ऐसा लगता है तेरे साथ भी कोई ओपन अप करवाने के लिए चाहिए तुझे, तब तू शेयर कर पाती है मे बी योर साइड ऑफ द स्टोरी. आई फील That's nice, yeah. और मैंने ये भी बोल रही थी कि लड़कों की जो फ्रेंडशिप होती है ना, दे थिंक दैट दे आर वेरी चिल एंड दे डोंट गिव अ फक अबाउट एनीथिंग, बट दे डू नॉट. मैं ये जानना चाहती हूँ तुझसे, व्हाट? मतलब जैसे हम पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस कर रहे थे कि कंपटीशन गर्ल्स में और ये सब चीजें इस वजह से जो हेट करते हैं वो करते हैं, ऐसे गाइस में हाउ डू दे चैनलाइज देयर नेगेटिव इमोशंस एंड फ्रेंडशिप में? जैसे वो दोनों में होता है कि यार इसका सही चल रहा है ऐसा. यार मुझे लगता है कि हम लड़कियों को ज्यादा उस भी चीज में बोलते हैं कि ओ ये जेलस होते हैं. लड़के भी होते होंगे, दे आर ह्यूमंस, बट लड़कों को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शुरू से बिल्डअप किया जाता है. हाँ, उनका कॉन्फिडेंस भी शुरू से इतना बिल्डअप किया जाता है और उनको इतना वो ऐसे चिल वे में बात करने की आदत होती है, देन उनका यू कांट इवन जज कि आर दे जेलिस, वॉट आर दे फीलिंग, आप नहीं जज कर सकते. बट आई हैव सीन सम फ्रेंडशिप्स ऑल्सो जहाँ पर किसी को लगता है ओ ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये है वॉट, बट दे आर नॉट योर बेस्ट फ्रेंड्स. देयर आर सम बाउंड्रीज दैट दोज पीपल ब्रेक. एंड समटाइम्स आई फील वेरी ग्रेटफुल टू बी अ गर्ल टू हैव गर्ल फ्रेंड्स. आई वाज शेयरिंग दिस विद माय guy only and I was like, listen, I am very proud that I have 2 best friends, but I can say anything to them and I know they won't do anything opposite of it if it's hurting me. So I was like, I'm very proud कि मेरे को 10 friends ही चाहिए. अगर मेरे पास 2 friend भी और वो उनके साथ मैं at peace हूँ तो उससे बड़ी चीज ही क्या है. बट मुझे ऐसे गाय फ्रेंड्स में लगता है वो उनकी चीज. बट पता है, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, बट तेरे में अब आई है मैच्योरिटी. पता है पहले यू वांटेड बिगर लार्जर ग्रुप्स यार वही एंड तू होता रहता है, बहुत मानसी मैच्योर. हूँ. नो मैं अभी आते हुए भी सोच रही थी जब मैं जिम से आ रही थी दैट एज अ पर्सन द वे यू टॉक आल्सो नाउ तेरी थॉट्स मेरे बारे में क्यों सोच रही थी आते हुए? अरे हम पॉडकास्ट करने वाले थे यार. मेरे बारे में क्या सोच रही थी? और बेटर काम नहीं तेरे पास. मेरे को मजा आता है सोचते हुए. मैं हूँ ऐसी, ठीक है, ऐसे रैंडम कोई भी याद आ जाता है फिर मैं उसके बारे में सोचने लग जाती हूँ. बट मुझे ऐसा लगता है कि तू कितनी मैच्योर हुई है एंड द वे यू स्पीक, द वे यू टॉक, तो अपने वर्ड्स इतने प्रॉपरली रख पाती है. अब तेरे थॉट्स इतने क्लियर हो गए हैं. पहले आई थिंक तू यू वर ग्रोइंग अप ऑल्सो, यू वर अ किड, बट नाउ यू आर मैच्योर, लाइक यू आर रियलाइजिंग हु आर योर पीपल, लाइफ में क्या करना चाहिए. यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे एंड आई सी दैट चेंज. एंड आई थिंक ये बहुत ब्यूटीफुल चीज होती है अपने आप को इवॉल्व करना और स्टिल अंदर से वैसा रहना. और तू वो ब्यूटीफुली इवॉल्व हो रही है, ऐसे बटरफ्लाई बन रही है. तो अब समझ कैटरपिलर बटरफ्लाई बन गई है. यस या बट दैट्स ट्रू. बट आप एज के साथ सीखते हो कि कैसे होता है, क्या होता है, ब्ला ब्ला स्टफ ये वो. बट मैं उसमें गाय फ्रेंड्स पे थी ना, तो मतलब लोगों को, लड़कियों को लगता है कि गाय फ्रेंड्स आर वेरी चिल, मतलब ये लड़के इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बट दे डू हैव प्रॉब्लम्स विच दे डोंट शेयर अबाउट, दे डोंट टॉक अबाउट, बिकॉज उनको चाइल्डहुड से ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बनाया होता है ना कि उनके माइंड में अगर कोई थॉट भी आती है उनको लगता है यार मैं कैसे बोलूँ इसको, मैं शेयर कैसे करूँ. एंड समटाइम्स वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. इफ आई एम नॉट शेयरिंग एनीथिंग विद यू, तुझे पता नहीं लगेगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, तो तू अपना मन की करेगी ना, राइट? जब तक मैं शेयर नहीं करूंगी तुझे कैसे पता लगेगा हाउ आई एम फीलिंग. अच्छा हाउ I'll feel in this situation, मैं उस सिचुएशन में कैसे फील करूंगी, won't get to know जब तक I won't share it with you. लड़कों में ये होता है, उनको लगता है कि क्या है, मैं नहीं कर रहा शेयर, छोड़ना, छोटी चीज है, मैं नहीं बोल रहा. सो आई हैंडल कर लेंगे खुद. हाँ मुझे लगता है जेलेसी भी होती है जितना मैं इट्स अ ह्यूमन इमोशन होती होगी वो तो. गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से मैं यूजुअली जैसे ऑनलाइन उसके पर्सपेक्टिव से बताती हूँ. जैसे अब नीचे कमेंट्स भी कभी पढ़ते हो, लाइक व्हेनेवर यू रीड कमेंट्स खुद के भी या किसी सेलिब्रिटी के, उनके तो 10 टाइम्स ज्यादा आए होते हैं. तो उसमें पता लगता है ना, अरे ये तो ऐसी है, अरे मोटी, अरे काली, मतलब इट्स द काइंड ऑफ वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ हेट्रेड दैट दे हैव. रैंडमली पता नहीं मुझे क्यों याद आ रहा है, जानवी एंड खुशी कोई रील थी या पोस्ट थी, मैं देख रही थी, मुझे सिर्फ रियलाइज हुआ शी पोस्टेड अ पिक्चर अपनी मम्मी के लिए, श्रीदेवी जी के लिए, उनके हाँ बर्थडे था उनका. तो मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा था यार दे लॉस्ट देयर मॉम. हेट करने के लिए ना उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती ना कि यार देव गॉन थ्रू शिट, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करने देते हैं. भाई छोड़ दो उनको, कुछ भी क्या ही कर रहे हैं, तुम्हारी लाइफ तो चल रही है ना, तुम्हें थोड़ी आगे कुछ बोल रहे हैं. सो इट्स जस्ट मुझे
Very समझ नहीं fucked आता up in a way. कि या मुझे ऐसा लगता है लड़के यूजुअली मैंने जितना देखा दे यूजुअली अब्यूज एंड दे मूव ऑन. मैंने जो देखा है मुझे पता नहीं वो कैसे डील करते हैं उन सब चीज़ों से. But Instagram altogether is a fucked up place. Like it's nice. I'm very grateful for the work that we are doing. But Instagram has changed so many emotions, so many things जो कि पहले ऐसे नहीं चलता था चीजें. Now everything कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, you have to update it on Instagram. Why? My question is why? And even though that things happened in our lives also, people expect you to speak about it. But why? You know, Instagram needs to be your space and your own community which you built. It should be up to you if you want to speak about anything. If you want to Yeah. post about anything, it's up to you. एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी के भी घर पे कुछ हो रहा होगा या सबकी लाइफ में सबके घर पे कुछ ना कुछ हुआ होता है, यू डोंट गो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, राइट, कि ये चल रहा है. ऑब्वियसली दैट्स समथिंग दैट यू आर नॉट प्राउड ऑफ, और वो सब That's चीजें true. आपको लगता है हमें खुद डील करनी है इन सब चीजों से ना. एंड हेट्रेड क्यों यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सब अपना माइंड चेंज करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए आती है. आपको हेट्रेड और नेगेटिविटी क्यों शेयर करनी है? और अगर एक चेन ऑफ वो स्टार्ट होता है तो वो एंड नहीं होता, उसका चलता ही रहता है कुछ चीज की. क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो धमाका, वो ड्रामा, वो सब बिग बॉस का सीजन बन जाता है ये. हाँ. कि क्या हुआ इनकी लाइफ में और ये कैसे कैसे. अरे नहीं हुआ यार, लाइक जस्ट बी हैप्पी कि सबकी लाइफ में ड्रामा है भाई, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है. जस्ट लिव योर लाइफ. इफ यू आर हॉलो इनसाइड कि आपको और लोगों का ड्रामा देख के मजा आ रहा है, स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ कि मुझे किसी की सैडनेस देख के मजे क्यों आ रहा है भाई. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरे में है, मैं कितना बड़ा सेडिस्ट हूँ हाँ. कि कोई दुखी है तो मुझे अच्छा लग रहा है. वी नॉट सेइंग वी आर सेंट्स, एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी है. एंड द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट आई रीड, कोई टाइम लेके हमें मैसेज कर रहा है कि ओ आई लिसन टू योर पॉडकास्ट इस टाइम पे, वो बहुत अच्छा लगता है. बट मुझे ऐसा लगता है जो इक्का दुक्का अभी तो हमें बहुत कम आता है. बस मुझे उनका माइंडसेट समझ नहीं आता. एंड आई थिंक वी वर डिस्कसिंग दिस लास्ट वीक ऑल्सो. मैं दीक्षा को बोल रही थी, दीक्षा हाउ कैन दिस पर्सन इवन थिंक लाइक दैट. किसी की लाइफ में कुछ हो गया, आपके पास ये बोलने के लिए भी कैसे भाई. उसने बंदे ने अपने पेन कैसे गो थ्रू करके वो एक अच्छा इंसान बन के बाहर आ रहा है. आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि गो फॉर इट. लोग चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ हो गया, आप बैठ जाओ, आप कुछ मत करो लाइफ में, आप रो. देन ओ देखा, इफ यू आर स्माइलिंग ऑन कैमरा देन इसको तो फर्क ही नहीं पड़ा. इफ यू आर क्राइंग ऑन कैमरा ये सिंपैथी ले रही है भाई. तो लाइक व्हिच वे शुड आई Exactly. गो. There's no way. या देखो पता है, अभी आई वॉज वॉचिंग दिस रील कि एक फीमेल और मेल के बीच में डिफरेंस बताया होता. लाइक एज फीमेल्स वी हैव आवर बायोलॉजिकल क्लॉक गोइंग ऑन, राइट, कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी वोंट बी एबल टू हैव किड्स. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी चल रही है. मेल में क्या होता है, उनकी फाइनेंशियल क्लॉक चल रही होती है. आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम उनको, जैसे एक लड़की को बोलते हैं ना 25 to 30 के बीच में गेट मैरिड एंड वो है, लड़कों के ऊपर वो बोला जाता है 25 to 30 के बीच में हैव टू सॉर्ट योर करियर आउट, यू हैव टू स्टार्ट अर्निंग, यू हैव टू डू दिस थिंग. तो उनके लिए बोला जाता है दैट लड़कों की फाइनेंशियल क्लॉक कॉन्स्टेंटली चल रही होती है एक एज तक, कि इस टाइम तक यू शुड बी ऑन योर फीट एंड स्टार्ट अर्निंग. मैंने अभी जब सुन रही थी ना, खुद अब रियलाइज हुआ, ठीक है लड़कियों के ऊपर एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती है, बट लड़कों के ऊपर बहुत अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाती है, जो इन अ वे यू विल बी द मैन ऑफ द हाउस एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ 4-5 पीपल इन योर फैमिली. या ट्रू. It sounds very hectic and stressful to me. मतलब sometimes if I feel like I have to earn for 4 more people, मेरे लिए इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा कि मैं अपने लिए कर रही हूँ वही काफी है, अभी मेरे को 4 लोग के लिए और करना है. तो वो कितना ज्यादा एक अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लड़के के ऊपर डाली जाती है, क्योंकि वी डोंट स्पीक अ लॉट अबाउट दैट, बट इट्स ऑल्सो ट्रू. तो वो बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स डिवाइडेड है. बट ठीक है, इफ अ गर्ल इज लिविंग हर ओन लाइफ, उसकी लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, एक लड़के की लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, जो आई फील कोई लड़का आकर उस चीज के बारे में बात नहीं करता, एंड तभी वो इतना ज्यादा ओपन नहीं है वो टॉपिक. ट्रू. एंड आई थिंक सॉरी मैं कट करी, बट हम दोनों ये बात कर रहे थे कि आई हैव फ्रेंड्स जिसके लिए वी आर सो प्राउड ऑफ. 3 of my friends, 3 or 4 friends are literally earning like since they were 22, started earning and doing so good in their life. And कृतिका और मैं यही बात कर रहे थे that ऐसे भी लड़के होते हैं. It's just that एक बार वो हिट करता है ना आपको चीज, एक लड़के के माइंड में एक बार हिट करता है. Once you start focusing on your career, मैं गाय पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, अगर once a guy starts focusing on his career, he just becomes more mature, and वो immaturity एकदम से just I don't know ऐसे swing कर जाती है आपकी बॉडी से, एकदम से आप mature फील करने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स की आपको वैल्यू हो जाती है. just that you should be mindful about your career and your life. Yeah, and अगर अभी आप बहुत overwhelmed feel कर रहे हो because a lot of people, lot of guys also, मैंने जितने अपने आसपास भी देखे हैं, उनके dads बहुत successful होते हैं, उनके ऊपर वो pressure भी आ जाता है कि यार I can never live up to my dad's expectations. तो just start small maybe, जो भी करो मुझे ऐसा लगता है कि start working because it gives you a sense of confidence also about yourself. जैसे if you work out, you feel good आपको कि you've worked on your body. You take care of your body and then if you're working also, earning also, तो आपका confidence level और self esteem बढ़ती रहती है. मुझे ऐसा लगता है सबके लिए important होती है. I think थोड़े दिन पहले
वही तू और मैं डिस्कस कर रहे थे आई थिंक कि वेकेशन भी तब वेकेशन लगती है जब आप ऐसा लगता है ना आई वर्क सो हार्ड एंड नाउ आई वांट टू रिलैक्स एंड देन यू गो बैक। वरना वेकेशन अगर 2-3 महीने तक आप वेकेशन पे हो उसके बाद हर चीज बोरिंग लगने लग जाती है। क्या बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। That's true. फालतू में आप सिनेरियोज बनाओगे, फालतू में चीजें होंगी जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है भी नहीं वो आप क्रिएट कर दोगे खुद क्योंकि यू फ्री। That's true. वो होता है. Moral of the story of this episode was कि यार you should just do something. और मे बी यू हैव अ हॉबी। Yeah. Oh guys, हॉबी से याद आया, आई रियली वांट टू स्टार्ट गोल्फिंग। आई रियली वांट टू स्टार्ट एंड मुझे ऐसा लगता है पता नहीं ड्राइविंग और ये सब मुझे अगर कोई स्टेप बाय स्टेप चीज फॉलो करनी हो ना मैं नहीं कर सकती वो। अगर मुझे डांस भी करना हो आई कैन नेवर रिमेंबर द स्टेप्स। आई एम मोर ऑफ अ फ्री स्टाइल पर्सन। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को कोई स्पोर्ट सीखना तो उसमें तो सीखना ही पड़ेगा ना। वो तो वैसे वो तो फ्री स्टाइल नहीं होगा। फनी हुआ था, मैं हम रात को आ रहे थे कहीं से, मैं कृतिका को बोल रही हूँ चल आजा गाड़ी चला। मैं तो नहीं चलाऊंगी। मैंने कहा कहती मैं खाली रोड्स पे चलाऊंगी। इनका तुझे दिल्ली में खाली रोड्स रात के अलावा और कहाँ मिलेंगे जस्ट टेल मी। कहा बिल्कुल खाली है तू आ। कहती नहीं मेरे को नहीं चलानी। इनका तुझे गो कार्टिंग करने जाना है, तुझे कार ड्राइव नहीं करनी। इट्स जस्ट द सेम, ऑटोमेटिक कार्स आर जस्ट द सेम। डी पे डाला एंड यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ द स्टीयरिंग एंड क्लच एंड ब्रेक। एंड ऑटोमेटिक में तो क्लच भी नहीं होता, ओनली ब्रेक एंड रेस। गाइस वन डे पता है मुझे जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस होने वाली है ना जिस दिन मैंने ड्राइविंग सीख ली, मतलब मैं सोच रही थी तूने सीख रखी है, वो जस्ट स्कैर्ड टू ड्राइव। मतलब जब मैं ड्राइव कर रही हूँ अकेले तो मुझे ऐसे लगेगा वाओ मैंने क्या अकम्प्लिश कर लिया जिससे मैं मतलब मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग। मुझे अपने आप स्टार्ट करो। वो मैं नहीं कर पा रही ना गाइस, आई डोंट नो। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ऐसे किसी को उड़ा दूंगी रास्ते में। बट वन डे आई लर्न। फिर सच में मतलब द सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट दैट आई फील मुझे नहीं लगता वो किसी चीज से कंपेयर कर सकती हूँ। डू दिस जस्ट मुझे स्विमिंग भी नहीं सीखनी है। वो डे कब आएगा आएगा? इससे बताना चाहती हूँ। सॉरी इस पॉडकास्ट में मैंने 4 बार सॉरी बोला दीक्षा को कट करने के लिए। बट सो आई वाज टॉकिंग टू दिस पर्सन आई थिंक 2018-2017 की बात होगी मे बी। तो वी वर रैंडमली गेटिंग टू नो ईच अदर। पता नहीं कहाँ से स्विमिंग और ये सब की बात आ गई। तो उसने बोला डू यू नो स्विमिंग? मैंने बोला मुझे आधी आती है। तो बोलता आधी क्या आती है? मैंने बोला मुझे मैं 1 लैप ले सकती हूँ उसके बाद आई कांट ब्रीथ मतलब बाहर निकल के और मैं दोबारा वो कंटिन्यू नहीं कर सकती लैप। तो उसने बोला अच्छा डू यू नो हाउ टू ड्राइव? मैंने बोला नो। उसने मेरे को पता आगे से क्या बोला बेसिक लाइफ स्किल्स ही नहीं है आपके पास। तो हाउ वियर्ड ऑफ अ पर्सन यू आर। और मैं उसके बाद सुन भी नहीं हुआ। मुझे अब बोल के दिखाओ भाई। बोल बेटा अब आओ तू जरा। अब मैं बोलूंगी नो यू कांट, यू डिसरिस्पेक्टिंग मी। यार पता नहीं अभी उसने मजाक उड़ाते हुए हाँ। बोला था। एक फन वे में बोलना इज अ डिफरेंट थिंग कि यार तू पागल है तुझे कुछ भी नहीं आता इस सेंस में। बट या आई थिंक जो लोग तू बोल मैं बोलती रहूंगी। तू बोल। मैं बोल रही वी एज विमेन वी बोथ वी हैव ग्रोन अ लॉट एंड Yeah. अगर ये मैं 2018 अगर तेरा एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने भी बहुत शिट ली है उस टाइम पर 2018-2019 में कि अगर वो मेरे साथ इतना सा भी अभी होगा ना बोलोगे तू आ बेटा। नाउ आई डोंट नो यू जस्ट हैव टू कीप ऑन इवॉल्विंग एंड जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड नो व्हाट इज बुलशिट एंड व्हाट इज नॉट। कितना शिट आप नहीं शिट तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए बट कहाँ पर किस बंदे को उसी टाइम आपको नो मीन्स नो मतलब जैसे मैं उसको नो नहीं बोल पाई Exactly. कि व्हाई आर यू डिसरिस्पेक्टिंग मी। और उसने बहुत डिमीनिंग वे में बोला था कि यू तो डोंट इवन। जब उस टाइम पे भी आई वाज डूइंग दिस, मैं कर तो रही थी काम, आई वाज ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। ठीक है बस 2-3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो नहीं आती, सीख लेंगे गाइस। स्विम कर लेती है तू आधा। हाँ कर लेती है ठीक है तो Guys, मैं करके दिखाऊंगी। बेसिक वो आती है तेरे को। मेरी आधा स्विम कर मैं बाहर आती हूँ। अब हम देंगे स्त्री 2 का रिव्यू। दीक्षा देगी स्त्री 2 मैं जब देखने जाई थी मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, मतलब मैं कम से कम 10 टाइम्स तो कृतिका को बोल चुकी थी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। इतने अच्छे रिव्यूज पड़े बहुत एक्साइटेड हूँ। बट जब मैं वहां पर गई ना मेरा एक्सपेक्टेशन से आती और मूवी मुझे यहाँ लगी लिटरली तूने मेरे को बोला था। मतलब ठीक है फनी थी बट मेरे को मजा नहीं आया मूवी में। मेरे को ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट नो मे बी आई डोंट लाइक ये मेरा जॉनर नहीं है बट बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ पीपल 90% लोगों को पसंद आई है मूवी। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है मेरे को फर्स्ट स्त्री 1 ज्यादा बेटर लगी थी। मैंने देखी नहीं है स्त्री 1। अच्छी थी स्त्री 1 तो या बट आई थिंक लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं भी बहुत हाइप अप हो गया था मेरे माइंड में भी। आई वुड स्टिल से कि ये बहुत टाइम बाद कोई ऐसी मूवी आई है जो एटलीस्ट आप इंटरेस्ट बन के लास्ट तक देख रहे हो। हाँ. वो था आई थिंक जो लोगों के रिव्यूज थे उसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा थी कि मुझे उस लेवल पे अच्छी नहीं लगी। हाँ मे बी हम रिव्यूज के और हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ गई थी कि वो मूवी देखने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती तो आपको छोटा सा भी कुछ आता आपको वो भी नहीं अच्छा लगता। तो मे बी वो हुआ है हमारे साथ। या एंड प्लस the राजकुमार राव, the cast पंकज was त्रिपाठी, श्रद्धा Shraddha कपूर Kapoor. एंड पारशक्ति खुराना एंड द अदर गाय आल्सो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। उनका भी बहुत अच्छा है। Yeah. वो उस पे भेड़िया में भी उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है। तो मुझे पार शक्ति खुराना से ना ये चीज पिंक विला के वॉच थे हम बाहर थे तो आई थिंक ही वाज होस्टिंग द शो। उसके बाद वी वो गोइंग बैक तो उसने बोला ओ खुराना ऐसे सम आई डोंट रिमेंबर बट खुराना पे भी बॉन्डेड। आई वाज सो ऑकवर्ड मैंने आई डिडंट इवन रिवर्ट प्रॉपर्ली करके मैं चली गई थी। बट ही इज अ वेरी वेलकमिंग पर्सन दैट काइंड पर्सन आल्सो ही लुक्स लाइक अ काइंड पर्सन। दैट्स दैट गाइस। आई होप दीक्षा को कॉल्स आए जा रहे गाइस बिजी गैल।
Ow. Ow. With that, ow. But yes, hopefully you guys are enjoying the podcast. Agar if you have any requests, let us know. I think next podcast mein we'll have Vibhuti. Yes. If you have any questions related to skin, maybe you're thinking about fillers or anything in that spectrum, drop the questions below. We'll take up your questions. Just maybe I think top likes honge. We'll take like 5 to 10 questions and we'll answer that. And yes, We shall see you in the next one. bye guys. Maha.